This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. This is Bharat FM. Hello, good evening, everybody, and good morning, Cincinnati. Welcome to Storytellers Cafe, and I'm Usha Venkatraman, your host for the evening. I hope everyone is safe, maintaining social distancing and masked. We are going through troubled times, my friends, but for the next 30 minutes, sit back and enjoy a wonderful storytelling in Hindustani. Yes, you heard me right. So sit back and listen to our special guest who graces our studio tonight. Our guest for tonight on Storytellers Cafe is Valentina Trivedi, a writer, performer, and educator who straddles various mediums, giving all her work a unique stamp of inherent creativity. Valentina has written and directed short films, among them a biopic on BKS Iyengar, the yoga guru. She has embraced multiple performance forms, performed at festivals in India and abroad. She has also revived the art of ancient Urdu storytelling, Dastan Goi. She's adept at it. Performing in Hindustani and pure Urdu, Valentina adapted Satyajit Ray's film Gopi Gain Bagha Bain, I hope I'm pronouncing it fine, into a dastan. This was much enjoyed by people of all ages, and she performed this at the Jaipur Literature Festival. Valentina also enjoys adapting and expanding folk tales for performance storytelling. Her repertoire of storytelling includes Aao Suno Kahani, a video and audio channel of stories for listeners of all ages that she started with a friend. Valentina also has a quirky weekly podcast, Funnyture, a platform for her to share her varied thoughts and ideas. And I'll let Valentina talk more about it. If I'm not mistaken, this was launched during the new normal. She's passionate about children and learning and specializes in approaching the learning process from the child's perspective and has been invited to numerous educational forums to share her progressive views. Valentina has worked in both the formal and informal sectors, proactively initiating and encouraging community endeavors. Valentina was the first woman member of the executive committee of the Doon School Old Boys Society and is also the first alumna to be a member of the Board of Governors of Doon School. Ladies and gentlemen, let me introduce you to our special guest on Storytellers Cafe, Valentina Trivedi. Welcome to Storytellers Cafe, Valentina. Thank you so much, Usha. Thank you for inviting me. And I'm very happy to be here because last time you and I met was before this new normal started. So I'm very happy to meet you virtually tonight. Yes, we met at the Udaipur Storytelling Festival. And let me tell you, friends, I was blown away by Valentina. I knew Valentina distantly from, I guess, 2010 when I met her at my first Bookaroo Children's Literature Festival. And well, experience her yourself. I'm not going to say much. But let me ask Valentina, how did you start this journey, Valentina? So, Usha, actually, my journey with stories is as old as I am. And as far back as I can remember, a storybook was my favorite companion. So whenever somebody was going out or whenever somebody wanted to gift me something, I would always ask for a storybook.
And my mother tongue is Hindi. And I started reading both Hindi and English storybooks. So now I write with equal ease in both languages. I'll tell you a small anecdote from my childhood, if I may, because that will, I think, make it clear to the listeners how far back this goes. So I must have been about 2.5 or definitely less than 3. And my father was teaching in a college. We lived in Dehradun, and Dehradun was very pristine at that time. And it was the monsoon season. And the rain used to come down so heavily at that time that you couldn't hear yourself speak often. And my father came home from college, and he was in the outer room telling my mother that it was the last day for a children's cartoon film running in one of the theaters. And I was inside, I had fever, I was in bed. And he was telling my mother, I'm feeling so bad, I would have loved to take her, but today's the last day and she has fever. And I heard that. And I said, oh, I have to go, you have to take me. And to my father's credit, and I want parents of young children to know this, I often share this with them, he did not reprimand me, neither of my parents. I wasn't told to keep quiet and stay in bed and have my medicine. No. He took an umbrella, went out in that pouring rain, and brought a taxi. So most people at that time in Dehradun used to walk. There were very few cars. And he went and brought a taxi. I was bundled up in a blanket and taken to watch this movie. And I still have a faint memory of something on the screen, and it was so exciting. So what I'm trying to say is that connecting with stories was always encouraged when I was a child. And oftentimes we would have people over, and I would ask them to tell me a story. And you know how it is with grown-ups, they like to make excuses at times, and they think the children will buy it. So they would say, oh, actually, I can't remember a story, or I don't know a story. And then I would tell them, okay, let me tell you one. And they had to listen to my story. But because of all my teachers and all the grown-ups around me at that time, none of them, not one of them, discouraged me. This passion just grew and grew. And I realized that at one point in my life, I looked back at all my career choices, and I realized all my work has been around stories in one way or the other, whether it was in advertising or writing scripts or directing or anything, or, performing like I do now. Wonderful. Wonderful, Valentina. Also, I want you to tell the listeners that you acted in a recent film that was released on Netflix. Dolly or Kitty Ki Chamakte. Yes, Dolly, Kitty or Wo Chamakte Sitare. So I have a very tiny, brief appearance in that towards the end of the movie. But it was very interesting. A couple of years ago, I was performing in Hyderabad. I was doing a Dastan Goi performance. And there was a phone call, and from a missed number, unsaved number, and I didn't pick it up. And anyway, I called back, and I didn't call back. And then they messaged frantically, we are trying to reach you, and this is for a film. And I said, this is a prank. Who's this? I don't know. But finally, they sent me something, and they said, could you please just record it and send it to us? And I was still skeptical. So I asked a friend or two in the film industry. I said, this is seeming like a prank. And she said, no, go ahead, send it. And I did. And that's how this happened. I don't know how they got my number. I don't know. I've not acted in a film before. No, you are wonderful. I think you're undermining yourself. And I will let the viewers experience the expert here. So, Valentina, just want to ask you, how come your name is Valentina Trivedi? And also one more, that you are, in the board of governors of the prestigious Doon School. My uncles by marriage are all passed out students of Doon School. So can you just tell us briefly about that? So my father, as I told you, was a teacher, and he taught at the Doon School for over 25 years. And he was a physics teacher.
and physics being his passion. And here I think, Usha, I'll have to divulge my age, or at least, so I was conceived around the time Valentina Tereshkova went into space. She was the first lady in space. Okay. And my father, being so passionate about physics, and that was the time, you know, the excitement about lunar landings and space travel, he said, if it's a daughter, I'm going to name her Valentina. And that's how I got my name. Coming to your second question, yes, the Doon School is a boys' boarding school, a very prestigious one, topmost in the country. My father was teaching there, and that is why I got to study there, because the master's daughters can study there, even if it's a boys' school. And it was a wonderful experience, you know, living on a 70-acre campus and growing up in that wonderful, verdant surrounding. It was really nice. And I think when I was on the executive committee, I was the chief editor of the newsletter, their Old Boys newsletter. And I connected with a lot of DOSCOs across batches, which was a very enriching experience for me. And yes, now I'm on the board of governors. I've just recently joined. I'm the youngest member on the board, not age-wise, but seniority-wise. Congratulations on that. I visited the school. I did a little residency program at the Wellams Boys School a couple of years back, and I had the honor of visiting the school. So Valentina, without further ado, we have about 20 minutes. I invite you to Storytellers Cafe to tell us your story for the evening. If you can tell me the title of the story, and if you want to briefly introduce the story, go ahead, the floor is yours while I fade away from the screen now. Thank you, Usha. So I live in Lucknow now, and the story I have chosen for this evening is a folk tale from Gujarat, but you know how folk tales are, and that's their beauty. You can adapt it, and I love adapting and expanding and adding humor to folk tales, and that's what I've done to this one. And I have placed it in Lucknow, where I now live. So the listeners will get a glimpse of Lucknow in this. And the title of the story is Ilm Ki Dukaan. Now, ilm is knowledge, or if you can stretch it, wisdom. So this is about the wisdom shop, Ilm Ki Dukaan. So I'm just going to have a sip of water. तो जनाब, ये कहानी बहुत पुरानी है, मगर कहानियों की एक खासियत होती है कि वो वेताल की तरह होती हैं, ना कभी बूढ़ी होती हैं और ना कभी मरती हैं, बस सदियों युगों से चलती चली जाती हैं और बिना वीजा और पासपोर्ट के पूरी दुनिया के चक्कर लगाती चली जाती हैं। तो कहानी तो पुरानी है, मगर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हर कहानी सुनाने वाले को ये हक है कि वो कहानी को जोड़े, तोड़े, मरोड़े, उमेठे और पेश करे। पर सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि सुनने वालों को मजा आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूं कि आज आपको मेरी कहानी सुनने में मजा आएगा। तो लखनऊ शहर में ललित नाम का एक होनहार लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। पूरे परिवार के दिन बड़े मजे में कट रहे थे, मगर अचानक ललित के पिता गुजर गए और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब ललित को पढ़ाई लिखाई छोड़ के पैसा कमाने की जद्दोजहद करनी पड़ी। वो सोचता रहा कि क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं। कुछ दिन तो उसने कचहरी के बाहर बैठ के कुछ लिखा पढ़ी का काम किया, मगर आमदनी कुछ खास नहीं हुई। शाम को वो अक्सर टहलने निकल जाता और सड़कों के चक्कर लगाते ही रहता, ये सोचते सोचते कि आखिर पैसा कमाने के लिए क्या करूं, आमदनी का कौन सा जरिया ढूंढूं। एक शाम उसने अपनी सैर का रुख अमीनाबाद की तरफ किया।
अब साहब अमीनाबाद में उन दिनों भी काफी भीड़ होती थी, गहमा गहमी रहती थी, तरह तरह की दुकानें सजी थी जिसपे तरह तरह की चीजें हाथों हाथ बिक रही थी। कहीं से देसी घी में पकती टिक्कियों की खुशबू आती, तो कहीं से इत्र फुलेल की, कहीं गर्मा गर्म जलेबियां तली जा रही होती, तो कहीं रबड़ी के दोने हाथों हाथ बिक रहे होते। अरे कहीं खिलौने वाले आवाज दे दे कि लोगों को बुला रहे होते, तो कहीं चूड़ी वाले भर भर हाथ चूड़ियां पहना रहे होते। कहीं से कबाब और कोरमे की खुशबू आती, तो कहीं से तरह तरह के अचारों की, कहीं सलमे सितारे वाले लहंगे लटके होते, तो कहीं रेशमी साड़ियों के ढेर लगे होते। और सब सामान की बिक्री भी खूब हो रही थी। ललित ने सोचा कि दुकान खोलने में ही फायदा है, मगर किस चीज की दुकान खोले? हर चीज तो यहाँ पहले से ही बिक रही थी। 2 दिन इसी उहापोह में बीत गए। फिर एक दिन जब उसकी नाक कोरमे की खुशबू से सराबोर हो इत्र की खुशबू की तरफ बढ़ रही थी और आंखें रंगीन कांच की चूड़ियों पर फिसलते हुए मुकेश के फिरोजी लहराते दुपट्टे पर पड़ी, तो उसके कदम ठिठक गए और उसे एकदम से ख्याल आया कि उसे किस चीज की दुकान खोलनी चाहिए। एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत सबको थी, मगर वो यहाँ बिक नहीं रही थी। बस उसने एक दुकान किराए पे ली और कुछ जरूरत का थोड़ा सामान खरीदा, कुछ कागज, कुछ एक कलम, स्याही की दवा, क्योंकि उन दिनों कलम को स्याही में डुबो कर लिखते थे, एक चौकी, और दुकान किराए पे लेके वहां पे बैठ गया। पहले दिन तो उसकी दुकान की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ आस पास के दुकानदारों के जो उसकी तरफ देख देख के उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। दूसरे दिन बाजार में जाने वाले लोगों ने सरसरी निगाह उसकी दुकान पे डाली। तीसरे दिन मनचले लड़कों का एक रीला, और साहब ये बता दूं कि लखनऊ में मनचले लड़कों की कमी नहीं है। जो वहां से गुजर रहा था रुका और देखा दुकान की तरफ। उनमें से एक बोला, ये दुकान तो लगता है नई खुली है, ये दुकान हम कब्बो देखे नहीं। दूसरा लड़का बोला, अरे नई खुली है, देख नहीं रहे हो, तनिको सामान नहीं है। तीसरा बोला, अरे दीदे खोल लो, इस सामान की दुकान नहीं है। अब 4 लोग दीदे फाड़ फाड़ के देखने लगे और एक बोला, अरे जब कछु सामान है नहीं तो लईबे का। एक लड़के ने आगे बढ़ के ललित से पूछा, ए भैया का बेचत हो? ललित ने मुस्कुरा के दुकान के बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया, इल्म की दुकान। अब साहब 4 जोड़ी आंखें दुकान के बोर्ड की तरफ उठी, पर पढ़ के भी कुछ समझ ना पाए। वो क्या है ना साहब, हम अपनी आंखों से मजबूर हैं। हम समझते हैं हमारी आंखें बड़ी लाट गवर्नर हैं, उन्हें तरह तरह के सुरमा, काजल, पेंसिल, लाइनर से सजाते हैं। किसी पे दिल आ जाए तो नजरें बिछाते हैं, किसी से उधार लिया हो तो नजरें चुराते हैं, किसी पे गुस्सा आए तो आंखें दिखाते हैं और दूसरों की आंखों को दिखाने के लिए सजते संवरते हैं। मगर अगर हमारा सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, तो उसे समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब साहब इल्म भी तो एक ऐसी ही चीज है। तो लड़कों ने कहा, अरे ललित के पास जाके पूछा, भैया जरा चवन्नी का इल्म दे दो। ललित ने कहा कि देखो, इल्म का छोटे से छोटा टुकड़ा भी 98 का मिलेगा। अब लड़कों ने सोचा, अब 98 इल्म ये ना दिखने वाली चीज पर क्यों खर्च करी जाए, और उनकी टुकड़ी आगे बढ़ गई।
ललित निराश तो हुआ, फिर उसने सोचा कि आज कम से कम लोग रुके तो, दुकान पे कुछ पूछा तो, कल और भी बढ़िया होगा। तो वो घर चला गया और अगले दिन फिर आगे मुस्तैदी से दुकान पर बैठ गया। उसने देखा कि आसपास के लोग आवाजें लगा लगा कर ग्राहकों को बुला रहे हैं। उसने सोचा मैं भी आवाज लगाता हूँ। बस साहब, उसने कहा, साहिबान कदरदान, आइए आइए, ले जाइए थोड़ा इल्म, थोड़ा ज्ञान। अरे हर कीमत का, हर उम्र के लिए, बच्चे बूढ़े हो या जवान, आइए आइए, ले जाइए थोड़ा इल्म, थोड़ा ज्ञान। साहब, मंगल का दिन था। एक निठल्ला नौजवान हनुमान मंदिर से होकर बाजार में बेवजह टहल रहा था। उसने भी ललित की आवाज सुनी और सोचा, अरे ये तो कोई नई दुकान खुली दिख रही है। अपने दोस्तों में मैं पहला होऊंगा जो नया नया इल्म खरीदूंगा। ये सोच के वो दुकान पर गया और उसने ललित से पूछा, ए भैया, 1 किलो इल्म कितने का दिया? अब जनाब, ये पहचान है बेवकूफों की कि जिनके पास रत्ती भर भी इल्म नहीं होता, वो किलो के हिसाब से खरीदने की सोचते हैं। ललित समझ तो गया, पर वो मुस्कुराया और बोला, अब किलो के हिसाब से तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, पर हाँ, 1 रुपए में आप इल्म का एक अच्छा खासा टुकड़ा खरीद सकते हैं। सौदा तय हुआ और लड़के ने 1 रुपए का सिक्का ललित को दिया। ललित ने सिक्का रखा, चौकी पर एक कागज रखा, कलम को स्याही में डुबोया और उस पे कुछ लिख के कागज मोड़ के लड़के को दिया और कहा, ये लीजिए आपका इल्म का टुकड़ा, ले जाइए और इस पे अमल कीजिए। अब साहब, लड़का दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुंचा और नई नई खरीदारी अपने माँ बाप को दिखाई। माँ ने कहा, हे भगवान, तुमने कागज का टुकड़ा खरीदा है। तब तक पीछे से पिताजी दहाड़े, दिखाओ क्या लाए हो। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। अरे ये नहीं कि साहबजादे सीधे घर आए, बाजार में आवारागर्दी करके मेरी मेहनत की कमाई लुटाते फिरते हैं। उन्होंने झट से कागज छीना और खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, 2 लोगों की लड़ाई को कभी भी रुक के मत देखो। पिताजी आग बबूला हो गए और सीधे पहुंचे अमीनाबाद इल्म की दुकान और वहां जाके ललित से कहा, ये मेरे लड़के को तुमने बेवकूफ बनाया है, नहीं चाहिए तुम्हारा ये इल्म, लाओ सिक्का वापस करो। ललित ने चुपचाप सिक्का वापस कर दिया। सेठ जी जाने के लिए मुड़े, तब तक ललित ने कहा, रुकिए रुकिए, अब आपको खरीदा हुआ इल्म भी लौटाना पड़ेगा। सेठ जी कुछ समझे नहीं। ललित ने कहा, देखिए, अपने बेटे की तरफ से लिखिए कि मैं लौटाए हुए इल्म का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा, इसलिए 2 लोगों की लड़ाई को हमेशा रुक के देखूंगा। सेठ जी ने कागज पे लिखा और वापस जाके कागज अपने बेटे को थमा दिया और सिक्का अपने जेब के हवाले करा। अब साहब, कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर से बाजार में टहल रहा था और उसने देखा कि 2 औरतें लड़ रही हैं। अब इल्म लौटाने के कारण उसे रुक के उनकी लड़ाई देखनी थी, सो वो देखने लगा। अब ये औरतें भी ऐसी वैसी नहीं थी, नवाब साहब की प्यारी दुलारी शहजादियों की दासियां थी। जितनी नकचढ़ी उनकी मालकिने, उससे ज्यादा नकचढ़ी वो। लड़ रही थी एक गजरे वाले से। दोनों कहती थी कि मुझे सारे गजरे चाहिए। गजरे वाली ने लाख मिन्नत करी कि बीबी आधे आधे ले लीजिए, आधे आप ले लीजिए, आधे आप ले लीजिए, मगर दोनों टस से मस नहीं हो रही थी। अंधेरा हो चला था मगर झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों ने देखा कि एक लड़का खड़ा हुआ देर से ये झगड़ा देख रहा है। जाते जाते वो गजरे वाली को महल में अगले दिन आने के लिए कहकर लड़के का नाम पता पूछना भी ना भूली और वापस जाके अपनी मालकिनों को सारी बात बताई और कहा कि वो लड़का है गवाह इस घटना का। बस फिर क्या था, दोनों शहजादियों ने अपने अपने पास से खबर भिजवाई ललित के पास कि देखो कल महल में आ जाना और मेरी दासी की तरफ से गवाही देना, नहीं तो तुम्हारा सर
कलम कर दिया जाएगा। अब लड़के को काटो तो खून नहीं, और सेठ जी की जान सांसत में, क्या करें क्या ना करें। जब कुछ समझ नहीं आया तो दौड़ के फिर पहुंचे इल्म की दुकान और ललित से कहा, भैया तुम्हारा दिया हुआ इल्म लौटा दिया, बड़ी मुसीबत आन पड़ी, अब तुम ही बताओ क्या करें। ललित ने कहा, मामला टेढ़ा है सेठ जी, अब इसके लिए तो आपको पूरे 100 रुपए का इल्म खरीदना पड़ेगा। 100 रुपए? पर सेठ जी क्या करते, अंटी ढीली करके 100 रुपए गिन के ललित को दिए। ललित ने अपनी चौकी पर एक कागज रखा और कलम को स्याही में डुबोकर उस पर कुछ लिखा और मोड़ के सेठ जी की तरफ। सेठ जी ने जल्दी से कागज झपटा और खोल के पढ़ा। उसमें लिखा था कि लड़के से कहो कि कल महल में पागल की तरह पेश आए। बस फिर क्या था, अगले दिन वो लड़का भरी गर्मी में टोपी मफलर ऊनी कोट पहन के गया, कुर्सी पे उखड़ होके बैठ गया और उल जलूल जवाब देने लगा। कुछ देर में उसे सिरफिरा समझ के लोगों ने वापस भेज दिया। अब तो सेठ जी के घर में कुल दीपक के सकुशल लौटने पर घी के दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। लेकिन अगले दिन फिर से Looks like we are facing some technical snafu. Valentina should be back. Please sit back. I think I was mesmerized. She was just wonderful. I don't have words to describe her in Hindi. Bahut khoob. Yes, she's back. You are on mute, Valentina. You are on mute, Valentina. Valentina, you're on mute. Unmute yourself. Yes, now is it all right? Yes, you're fine. लेकिन अगले दिन सेठ जी को चिंता ने आ घेरा। उन्होंने सोचा कि अब तो लड़के को हमेशा सिरफिरा ही बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नवाब साहब को असलियत का पता चला तो पूरे परिवार की शामत आ जाएगी। 2 रातें और ऐसे ही करवटें बदलते हुए बीती और तब जाके उन्हें समझ में आया कि इल्म की दुकान दोबारा जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बढ़ी हुई दाढ़ी और गड्ढे में धसी आंखें लेके वो ललित की दुकान पर पहुंचे और गिड़गिड़ा के बोले, भैया बड़ी मुसीबत आन पड़ी, अब तुम ही बताओ क्या करें। मानो इल्म ना हो गया, अफीम का गोला हो गया कि एक बार जो लत लगी तो बस। ललित ने कहा, अरे सेठ जी, मामला तो बड़ा संगीन है, अब इसके लिए तो आपको पूरे 1000 रुपए का इल्म खरीदना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, सेठ जी ने अंटी ढीली करके 1000 रुपए ललित के सामने रखे और ललित अपनी चौकी के सामने बैठ गया। एक कागज चौकी पे रखा, स्याही में कलम डुबोई और कुछ लिख के सेठ जी को दिया। सेठ जी ने झपट के कागज लिया और खोल के पढ़ा। उसमें लिखा था कि मौका देख के जब नवाब साहब खुश दिखें तो उन्हें पूरी बात बता के माफी मांग लो। फिर क्या था, सेठ जी रोज नवाब साहब के महल के चक्कर काटने लगे मौके की ताक में। फिर एक दिन खुशखबरी आई, अरे नवाब साहब की पोती हुई है, नवाब साहब की पोती हुई है, और जश्न हुआ। और उसी जश्न के माहौल में मौका पाकर सेठ जी ने नवाब साहब को पूरी बात बताई और माफी मांग ली। सेठ जी को पूरी कहानी सुनने में बड़ा मजा आया और इल्म की दुकान के बारे में जानकर हैरत भी हुई। उन्होंने फौरन ललित को तलब किया। ललित अपने कागज कलम लेकर नवाब साहब के दरबार में पहुंचा और कोर्निश बजाकर खड़ा हो गया। नवाब साहब ने कहा, क्यों भाई, हमने सुना है तुमने इल्म की दुकान खोली है,
जी जनाब, ललित ने कहा। भाई हमें भी कुछ इल्म बेचो तुम। जी जनाब, ललित ने कहा, मगर आपको जो इल्म मैं बेचूंगा उसकी कीमत होगी पूरे 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपया नवाब साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फौरन 1,00,000 रुपए की थैली ललित को दी गई और ललित चौकी के सामने बैठा, एक कागज चौकी पर रखा, कलम स्याही में डुबोई और कुछ लिख के बड़ी अदब से नवाब साहब को पेश किया। नवाब साहब ने कागज लिया और खोल के पढ़ा। कुछ भी करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लें। वाह वाह, कुछ भी करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लें। वाह वाह, क्या बात है। नवाब साहब को ये जुमला इतना पसंद आया कि उन्होंने महल भर में जगह जगह ये इबारत लिखवा दी नक्काशीदार शब्दों में। अब कुछ समय बाद नवाब साहब बीमार पड़े और बीमारी लंबी चली। इस बीच उनके वजीर के मन में खोट आ गया और उसने सोचा कि नवाब साहब की बेशुमार दौलत को हथियाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उसने शाही हकीम के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और कहा कि नवाब साहब की दवा में जहर मिलाकर एक ही बार में काम तमाम कर दो। अगले दिन शाही हकीम जहर मिली दवा का प्याला लेकर नवाब साहब के पास पहुंचे। नवाब साहब ने कांपते हाथों से प्याला लिया और दवा पीने ही जा रहे थे, तब तक उनकी नजर प्याले पे लिखी इबारत पे पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। और नवाब साहब सोचने लगे। हकीम साहब ने नवाब साहब के हाथों से वो प्याला ले लिया और थोड़ी देर में दोबारा पेश किया। नवाब साहब ने फिर वो प्याला लिया और मुंह के पास लाए। तब तक उनकी नजर सामने दीवार पर लिखी इबारत पे पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो। और नवाब साहब सोचने लगे। अब तक तो शाही हकीम को लगा कि नवाब साहब को पूरे षड्यंत्र का पता चल चुका है। उसने वही उनके पलंग के पास घुटने टेक दिए और ठपक ठपक कर रोते हुए उनसे माफी मांगने लगा। नवाब साहब को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने फौरन शाही हकीम और वजीर को कैदखाने में डलवा दिया और ललित को अपना नया वजीर बना दिया। बस फिर क्या था साहब, ललित को अब इल्म की दुकान खोल के इल्म बेचने की जरूरत नहीं थी और कई सालों तक वो अपने इल्म से लोगों की मदद करता रहा, नवाब साहब को सही सलाह देता रहा। तो जनाब, इल्म की इस कहानी को लोगों ने लाखों बार सुना और सुनाया और दूर दूर तक इसकी महिमा फैली। लोग एक दूसरे से कहते थे कि भैया, इल्म तो किसी भी कीमत पर मिले ले लेना चाहिए। और ये कहानी सदियों से फिसलती हुई आई और मेरे कानों में पड़ी और आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई। तो अब आप भी इसे औरों को सुनिए और सुनाइए, क्योंकि देखे से दिखे नहीं ना कोई छूने पाए। देखे से दिखे नहीं ना कोई छूने पाए, पर एक मन का इल्म का डूबती नैया बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, सुपर, बहुत खूब, so wonderfully narrated, Valentina. I was just mesmerized. Beautiful. Thank you so much. We have run out of time.
Storytellers Cafe is indeed honored and proud to host such wonderful storytellers from India, from India's hinterland. And that is our aim, to give Indians a global platform, to showcase them to the global Indian diaspora. And that's what we strive to do. Thank you so much. Please look forward to our next Sunday. We have a wonderful storyteller coming all the way from down under Melbourne, Australia. Thank you. Thank you. Thank you, Usha. Thank you. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत. बजेगा भारत झूमेगा भारत. This is Bharat FM.